So today we are going to solve difficulty level 1700 problems. Okay. So we are solving next three problems in the same row. Uh, these are the three problems. I already did this one, but no way. We are not breaking any the row, so we are just continuing the same row. Okay. This is the first problem. Consider a long corridor which can be divided into n square cells of 1 cross 1. These cells are numbered from 1 to n from left to right. There are two people in this corridor, a hologon and a squad guard. Okay, initially the hologon is at the 8th cell and the squad is at b b cell. So there are firecrackers in the hologon's pocket. The ith firecracker explodes in xi second after being it lit. Okay, the flowing events happen every each second. First, the hologon either move into the adjacent cell, that is I plus 1 or I minus 1, and he can't leave the corridor, or stay in the cell he is currently. If the hologon doesn't move, he can light one of the firecrackers and drop it. The hologon can't move into the cell where the guard is. Secondly, some firecracker that was already dropped may explode. Formally, if the firecracker J is dropped at t second, then it will gonna explode at t plus sj second. For example, if the firecracker is at 2 second, then it will be and dropped at 4 second is explode at 6 second. Okay. Finally, the guard move one cell closer to the hologon. Okay. And if the guard move to the cell where hologon is, the hologon is got caught. Okay. Obviously, the hologon will cause sooner or later since the corridor is finite. His goal is to maximize the number of firecrackers that explode before he is caught. Okay, that is his will act in order to maximize the number of firecrackers that may explode. Okay, so basically what we are given. Sorry. So we have all the cells. Okay. Now first thing we have to notice that, so we are just taking the observations. So if like what let's say it is a man, so man अगर इस सेल पे है एंड कोई गार्ड है वो यहाँ पे है. ओके, सो मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम चले तो फिर ये यहाँ पर पकड़ा जाएगा लास्ट सेल में. ठीक है. और इवन अगर मुझे क्या करना है एट द एंड ऑफ द, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सप्लोड हो फायर क्रैकर्स, मैक्सिमम फायर क्रैकर्स वो एक्सप्लोड हो. तो मैं कैसे करूँगा, मैं मैं उनको कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी फायर क्रैकर को लीड करके घेर दूँ. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू लीड द फायर क्रैकर एज सुन एज पॉसिबल. सो ट्राइंग टू लीड firecracker as soon as possible. Okay, now another thing is how much firecracker I can lit. So I'm just saying is that, so मैं पहले कह रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम फायर क्रैकर लिट करने हैं, तो फिर मैं कितने मैक्सिमम कर सकता हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जब तक गार्ड यहाँ तक ना जाए, जब तक मैं इसको फायर क्रैकर को लिट करता रहूँ, जब गार्ड यहाँ तक पहुँच जाएगा, जब उसको मुझे पकड़ने में कितना सेकंड लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लगेगा. बस उस टाइम मुझे देखने कौन से वो फुटे हैं कौन से नहीं फुटे. तो फिर बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम जाए तो उनको सोल्व कैसे करते हैं ये देखो. पहले तो हर एक टेस्ट केस लेके चलते हैं, मतलब कि उसने फायर क्रैकर बाद में गिरे या पहले गिरे, मतलब हर एक टेस्ट केस लेके चलते हैं. फिर उनको हम क्रॉस करते चलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. फिर एट द एंड ऑफ द हम सभी वो एक्सप्लोर कर लेंगे सभी सॉल्यूशन, तो फिर हमें एक आंसर पता लग जाएगा. तो ऐसे शेप करते हैं क्वेश्चन को, एक आंसर को. तो ठीक है, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि पहले ये भाग रहा है, पहले तो ये रन कर रहा है, और फिर लास्ट में या बीच में ये कहीं फायर क्रैकर गिर रहा है. ठीक है, फायर क्रैकर. तो फिर अब फायर क्रैकर कब कब गिर सकता है, मिड में गिर सकता है,
कहीं मिड पे गिर रहा है वो, ठीक है, या कभी फर्स्ट में गिर रहे, पहले फायर क्रैकर गिरे फिर भागे, या फिर बिल्कुल लास्ट में गिर रहा। तो फिर इनमें से मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, जो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा मैं उसके साथ आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मिड में गिर रहा है, मतलब ये पहले भाग के यहाँ तक आया, फिर इसने यहाँ पर फायर क्रैकर लिट किया और फिर यहाँ तक गया। अब सीन क्या है कि ये गार्ड है, वो इसको पकड़ेगा कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। अब चाहे वो फायर क्रैकर पहले गिरो, चाहे वो मिड में गिरे, चाहे यहाँ पे गिरो, चाहे यहाँ पे गिरो, चाहे मतलब यहाँ पे था, यहीं पे, यहीं पे भी फायर क्रैकर उसने गिर दिया तो भी वही बात है। तो फिर और चाहे वो फायर क्रैकर कहीं बीच में भागते हुए फिर गिरो, लेकिन उसका एक्सप्लोड कब होगा, मतलब कि वो पकड़ा कब जाएगा, जब वो यहाँ, मतलब कि ये गार्ड यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। Okay. So you can see that, so the optimal solution is that, हमें क्या करना है कि फायर क्रैकर विल गोना टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर क्रैकर विल गोना ब्लो अप। सो मैक्सिमम टाइम देने के लिए, मतलब कोई फायर क्रैकर गेर दे, उसको मैक्सिमम टाइम दे, तो हम उसको पहले से पहले गेरेंगे, तो ये मिड में काम नहीं करेगा, लास्ट में तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो हम इसको फर्स्ट में गेरेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम चाहिए वो शिफ्ट हो एडजेसेंट सेल में या फायर क्रैकर लीड करें, जो गार्ड है वो एक सेल क्लोज आता रहेगा, ठीक है। तो इट डजेंट डिपेंड ऑन कि हम पहले फायर क्रैकर गिर रहे हैं या पहले चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए पहले चलना अच्छा रहेगा या फायर क्रैकर गिरना अच्छा होगा, वो फायर क्रैकर गिरना अच्छा होगा। तो हम इसके साथ चल रहे हैं कि पहले हम फायर क्रैकर गिर रहे हैं। ओके, ओके। तो हमने यहाँ जूम क्या किया है कि अब एट द एंड पहले तो हम कुछ अज्यूम करते हैं, फिर उसको प्रॉब्लम को वो अजम्पशन हटाते जाते हैं, वो केसेस बनाते जाते हैं उसके लिए। ओके, ठीक है। अब हमने अज्यूम किया है कि वो यहाँ पकड़ा जाएगा एट द लास्ट एंड सेल, मतलब कि लास्ट मतलब एंड सेल जो अपोजिट है गार्ड के। ओके, तो फिर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, तो मतलब कि मैक्सिमम वो कितनी ड्रॉप कर सकता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रॉप कर रहा है, ये ड्रॉप करते जा रहा है फायर क्रैकर, उसके पास अभी मान रहे हैं कितने भी फायर क्रैकर्स हो सकते हैं, तो ड्रॉप करते जा रहे हैं, ड्रॉप करते जा रहा है, मतलब पहली सेकंड में ड्रॉप किया, गार्ड यहाँ पर आ गया, फिर ड्रॉप किया, गार्ड यहाँ पे आ गया, फिर ड्रॉप किया, गार्ड यहाँ पे आ गया, अब इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने फायर क्रैकर ड्रॉप कर सकता है, जितना इस सेल, जितना डिफरेंस और कितना, मैं इसको नंबरिंग दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ड्रॉप कर सकता है 3 नंबर ऑफ सेल बिटवीन, इन बिटवीन द गार्ड एंड द पर्सन इज द टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर ही कैन ड्रॉप और ही कैन लाइट। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ, तो मैं एक कंक्लूजन में आ गया, क्योंकि मैं अगर इस जैसे कि मैंने घेरे कहीं भी कितने घेर सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ सेल बिटवीन, दैट इज position of guard, position of this absolute, okay, so it will be absolute value, maybe guard will be on opposite side, like guard will be here and the person is here, then it will be gonna take out minus, so we are just taking about the absolute value -1, okay. So this is the formula of calculating the distance between the two cell or the number of cell between the two cells. So it will be 3 minus 4 will be 4, minus 1 is equal to 3, so there are 3 number of cell between, ठीक है। तो ये कितनी सेल, तो मैं कितनी मैक्सिमम 3 फायर क्रैकर ड्रॉप कर सकता हूँ, अगर मैंने इससे ज़्यादा किए तो फिर मैं कोच हो जाऊँगा, तो ये मुझे पकड़ लेगा, मतलब ये मेरी सेम सेल में जाएगा। ओके, तो फिर अब मुझे पता चल गया, एक और आ गया मेरे पास ऑब्जर्वेशन, कि मैक्स फायर क्रैकर मैं कितना घेर सकता हूँ, सेल डिफरेंस -1। ओके, उसके बाद अब मैंने सारे क्रैकर घेर दिए, अब मैं कितनी टाइम तक और जा सकता हूँ, अब ओके, अब मैं, अब मेरे सारे, अब मैं उस पे पहुंच गया कि अब मैंने सारे क्रैकर्स डाल दिए, अब मैं किधर जा सकता हूँ, अब मान लो कि अब यहाँ पे गार्ड है, अब मैंने सारे क्रैकर डाल दिए, मतलब कि अब कुछ सिचुएशन ऐसी है कि गार्ड यहाँ पर पहुँच गया, गार्ड यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और मैंने सारे क्रैकर डाल दिए, अब मेरा चल, अब मुझे एडजेसेंट सेल में शिफ्ट होना है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज,
मतलब ये मुझे कब पकड़ लेगा, ये मुझे आ, ये मुझे मैं मतलब कि ये गार्ड मतलब कि ये जो गार्ड है, ये गार्ड अभी सेल में है, वो है जब इसकी पोजीशन ए है तो इसकी A+1 होगी या A-1 होगी। अगर गार्ड इस तरफ होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, गार्ड इस तरफ होगा तो इसकी ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये A-1 होगी, ठीक है। तो अगर मैं इन द सेंस कहूँ तो कितना होगा वो, कि गार्ड को यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ तक आएगा जब वो पकड़ा जाएगा, उतने टाइम तक मैं एडिसेंट सेल में शिफ्ट होते रहूँगा। मतलब कि या मैं भी खड़ा भी रह सकता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में तो मैं खड़ा ही रहूँगा क्योंकि जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो इसको टाइम कितना लगेगा, अ, इसको टाइम लगेगा, ये मान लीजिए ए सेल में है तो फिर इसको लगेगा A-1 और N-A, वो डिपेंड करता है गार्ड किस तरफ है, ठीक है। और +1, +1 किस लिए, +1 क्योंकि गार्ड तो इससे एक सेल दूर है ना, तो इसको 1 सेकंड और लगेगा इसको पकड़ने के लिए, ओके। तो टाइम फॉर इट्स रन और इट्स शिफ्टिंग विल बी A-1 और A-N+1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द कार्ड, ओके। नाउ okay, now the problem here is, now we solve the problem and the problem comes out a simple problem. What is that? Now we are just dropping that much number of firecrackers and we have that much of time. Now what we gonna do? And so हमें अब ऑप्टिमली ड्रॉप करने हैं बस, ओके। तो मैं कहूँगा कि ओके, तो अब प्रॉब्लम टाइप ऑफ एक sorting प्रॉब्लम हो गई। कैसे, कि अब मेरे पास मान लो कि मैं ये आया 5, मतलब मैं 5 फायर क्रैकर ड्रॉप कर सकता हूँ, ओके। तो फिर यार मुझे टाइम दे रखा है 5 फायर क्रैकर्स का, मतलब मेरे पास 7 फायर क्रैकर्स हैं, तो उनमें से टाइम है 7 सेकेंड, इसका 5 सेकेंड, इसका 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 4 सेकेंड, ये मेरे पास टाइम गिवन है। तो मैं अब कैसे गिरूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ पहले तो ये तो अब ये तो है कि मैं उनको ही घेरूंगा जिनकी 1 सेकेंड में शॉर्ट कर लेता हूँ, फिर इट विल बी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ आई एम गोना से दैट, पहले तो मैं एक तो बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, ठीक है, इस सॉल्यूशन में, या मैं एक सॉल्यूशन कर सकता हूँ बाइनरी सर्च में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n लोग है। मतलब मैं देख लूँगा मेरे पास इतना टाइम है, मैं कितने फोड़ सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ तक फोड़ सकता हूँ या नहीं, यहाँ तक, यहाँ फूट सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम इजीली गिवन है, सब कुछ गिवन है मेरे पास, तो फिर मैं इजीली एक सिंपल सी बाइनरी सर्च लगा के मैं कर सकता हूँ। और एन की वैल्यू, एम की वैल्यू, हाँ एम के अकॉर्डिंग चले तो 2 × 10⁵ है, तो फिर इजीली हो जाएगा। तो एम की वैल्यू 2 × 10⁵ है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एन की तो काफ़ी बड़ी है, मतलब ये सेल तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम फायर क्रैकर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि हम इतने फायर क्रैकर ही मैक्सिमम ड्रॉप कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एम के बराबर, जितने फायर क्रैकर हमारे पास परसेंट हैं इतनी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर वो अब बाइनरी सर्च के इसमें लगाएंगे हम कितने फायर क्रैकर्स फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, एम लॉग ऑफ एम, एंड एम लॉग ऑफ एम, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 2 × 10⁵, और log of n is equal to 17 18 kind of, so it can easily pass our test case, okay। so ये एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये हो गया हमारे पास बाइनरी सर्च। नाउ यू कैन सी दैट लाइक बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ तो एक टाइप ऑफ हम एक रूल फॉलो कर रहे हैं, कि मतलब कि सबसे लास्ट में मैं ये घेरूँगा सबसे छोटे वाला, इन द सेंस मैं कहूँगा कि अब मैंने, ओके, अब मैं दोबारा ये सेल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये सेल बना दिया and the person is here and the guard is here, and I know that the time after which it gonna finish and how much time it have to run, it have A-1 mod +1 or n-a depending upon the position of the guard, so we have that much of time, okay। तो मैं कहूँगा कि जो ये सबसे छोटे वाला है इसको मैं सबसे लास्ट में फेंकूंगा, मतलब मैं फेंकता जा रहा हूँ फेंकता जा रहा हूँ, तो जो सबसे लास्ट में होगा मैं कहूँगा मैं इसको फेंकूंगा,
ठीक है ना, यही है। तो फिर इसको सबसे कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सबकी वैल्यू छोटी है तो ये इसको कम टाइम चाहिए, तो मैं सोचूंगा इसको सबसे लास्ट में फेंकूँ, ये मेरे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हो आएगा। ओके। तो फिर मैं कहूँगा इसको, जैसे गार्ड यहाँ पर होगा, मतलब कि यहाँ पे होगा, तो इसको फूटने के लिए टाइम कितना लगेगा। अगर मैं इसको अब फेंकूँ, मतलब यहाँ पे है, इससे पिछली सेकंड में मैंने इसको फेंका था, मतलब गार्ड यहाँ पे था, फिर मैंने यहाँ पे इसको फेंक दिया, गार्ड यहाँ पे आ गया। तो अब इसको टाइम कितना लगेगा, इसको इसके पास टाइम होगा इतना, a-1 + 1 सेकेंड। मैं कहूँगा इसमें अगर फूट जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये फूटेगा या नहीं। मान लो ये टू कुछ भी होती वैल्यू, तो मैं कंपेयर करूँगा। अगर ये फूट जाएगा तो ठीक है, मतलब कि मैं ये मान लो मेरे पास है मैक्स फायर क्रैकर इतने हैं, और मैं यहाँ पे मैं पॉइंटर रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सबसे लास्ट में मैंने ये फेंका, तो ये फूटेगा या नहीं फूटेगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर फूट गया चलो तो ठीक है, मैं पॉइंटर को यहाँ कर दूंगा, और मैं कह दूंगा कि मेरे मैक्सिमम माइनस माइनस हो जाएंगे, मतलब कि, और मैं कह दूंगा कि मतलब मैं इसको लास्ट में से घेर सकता हूँ। ओके। फिर उसके बाद सेकंड वाला आएगा, मतलब कि मैं अब देखो, अब मैं काइंड ऑफ रिवर्स प्ले कर रहा हूँ। ओके, ये इसको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा वो चाहिएगा। ऐसे इसको मैं यहाँ पे, ये मेरा गाड़ी यहाँ पे है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये इनके मुझे कोऑर्डिनेट्स देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, when guard is at 8th position, okay, this is our initial scenario, and the person at third position. Now at first second t is equal to 1, I'm gonna drop a fire. So मैंने a1 ड्रॉप किया, कुछ भी इसकी टाइम है t1, दैट मेक सेंस। ओके, सो इसके टाइम है t1, ये t1 सेकेंड के बाद फुट जाएगा, तो ये फुटेगा कब, 1 + t1 के बाद। ओके, ठीक है। अब गार्ड की पोजीशन हो गई 7, फिर ये t2, t = 2 सेकेंड पे गार्ड की पोजीशन हो गई 6, मतलब ये गार्ड इस तरफ आया फिर इस तरफ आया, मैंने फिर फेंका t2, और ये कब फटेगा, हाँ 2 + t2 पे। सिमिलरली फिर गार्ड आ गया, t = 3 सेकेंड पे गार्ड 5 पे आ गया, एंड द थर्ड वन इज 2 + t3, मैंने ये फेंका, and then t4 second guard will come at 4 position, and t4 it will gonna blast at 4 + t4, so my mistake it is 3। okay, so now you can see that अब मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, अब रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सबसे लास्ट में मैंने ये t4 वाला फायर क्रैकर ड्रॉप किया है, तो मैं कह रहा हूँ मैं इसकी, मैं इसको मैं मैक्सिमम मिनिमम दे रहा हूँ, मतलब कि मैंने जो शॉट किया है, शॉटिंग के बाद मेरे पास ये आई है 1 2 4 5 7। ओके, तो फिर मैं कहूँगा इनिशियली मैं, मेरे पास टोटल टाइम है मेरे पास। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास टोटल टाइम है, मतलब कि मैं यहाँ पहुँचूँगा, तो मैं पीछे से चल रहा हूँ, रिवर्स में सब कुछ ले रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर मेरे पास टाइम कितना आएगा, जब वो पकड़ा जाएगा +1 सेकेंड, मतलब कि ये वाला टाइम जितना वो रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन पे फेंकूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये t4 इससे बड़ा है, तो मैं फेंक सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं फेंकूंगा। क्यों, क्योंकि ये फटेगा ही नहीं, तो फेंकने का मतलब नहीं होगा, फिर मैं इसको इस सेकंड पे फेंकूंगा। तो मैं कह रहा, मैं कंपेयर करूँगा, इसको मैं नाम दे दिया टोटल, या टोटल। तो मान लो टोटल कितना भी यहाँ पे 3 सेकेंड, 1 2 3, हाँ सॉरी सॉरी, इसकी पोजीशन है 3, तो t = 3 - 1 + 1, इट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, नाउ ये 3 सेकेंड है, तो फिर मैं इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ कि ये थोड़ा ऑल केसेस अडोप्ट कर ले। तो फिर इसको 3 सेकेंड में मैं पहले से कंपेयर करूँगा कि अगर t4 की जो होगा मैं वो फर्स्ट वाला फेंकूँ, तो मैं t4 = सेकेंड आएगा, वो फर्स्ट होगा, तो ये फटेगा ही नहीं। मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर्स भी काउंट करता रहूँगा, तो फिर मैं कहूँगा ओके ये फटेगा, क्योंकि इसकी 3 सेकेंड है और ये 1 सेकेंड पे है, तो ये फट जाएगा। तो टोटल +1
ओ मैन, इट विल बी टोटल, आई विल गोना मेक इट काउंट +1, एक हो गया। फिर मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया। अब इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद मैं क्या कहूँगा कि मेरा जो टाइम है, मैं अगर इस पोजीशन पे बात करूँ तो टाइम +1 हो जाएगा। जो जो 3 है यहाँ पे गिरूंगा तो यह +4 सेकंड हो जाएगा। मतलब कि इस सेकंड से अब मैं चेक करूंगा 4 सेकंड तक। अगर मैं यहाँ पे गिरूंगा कोई फायर क्रैकर तो उसको 4 सेकंड मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले वो यहाँ पे आएगा, फिर वो रन करेगा, और रन में इतने सेकंड लगेगा और 1 सेकंड ये मिलेगा इसको। ठीक है, तो इसको टाइम 3 था, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 4 सेकंड। टोटल इज इक्वल टू 4 सेकंड। मैं अब कंपेयर करूंगा सेकंड वाले को इस पॉइंटर पे। तो मैं कह रहा हूँ कि 4 पे ये 3 फटेगा या नहीं, इजीली फट जाएगा, काउंट +1 और हो जाएगा। अब ये मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, टोटल हो जाएगा कितना मेरे पास, 5 सेकंड। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे गिरूंगा कोई बम तो मेरे पास 5 सेकंड है, तो मैं देखूंगा 5 सेकंड में ये फट जाएगा या नहीं। तो मैं कहूँगा ओके ये 4 सेकंड भी फट जाएगा, तो ये भी फट जाएगा। मैं अब यहाँ पे आऊँगा T1 पे। ओके, ये तो एक सिंपल सिनेरियो होगा। तो मैं इसकी टाइम लिमिट इसको कहता हूँ, इसलिए इसको 6 लेता हूँ। माय बैड, इन दोनों को 6 6 लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है, वो तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मैं पहले चीज़ चेक कर रहा हूँ। पहला इसको होगा टाइम यहाँ पे 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पहला, और जो है ये टाइम है वो 1 सेकेंड है, तो इजीली फट जाएगा। मैं काउंट +1। ओके, सेकेंड वाला यहाँ पे टाइम मेरे पास आ जाएगा, मतलब इसके बाद मेरे पास 4 सेकेंड और होंगे। अब मुझे देखना 4 सेकेंड में ये फट जाएगा, इजीली फट जाएगा +1। अब यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा 5 सेकेंड, T = 5 सेकेंड। ठीक है, अब 5 सेकेंड हो जाएगा तो मैं कहूँगा अरे ये तो, इसको तो 6 सेकेंड चाहिए इसको, लेकिन मेरे पास तो यहाँ से अगर मैं यहाँ ड्रॉप करूँ तो मैं पकड़े जाने तक मेरे पास 5 सेकेंड है। तो फिर ये तो फटेगा नहीं, तो इसको गिरने का कोई मतलब नहीं है, इसको ड्रॉप नहीं करूँगा। तो फिर मैं इस पॉइंट पे जाऊँगा, मतलब मैं इस पॉइंट पे कोई कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा। नो ड्रॉप इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। आई एम नॉट गोना लेट एनीथिंग और नॉट गोना ड्रॉप एनीथिंग। ओके, अब मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड। अब मैं 6 सेकेंड पे देख रहा हूँ। ओके, नाउ माई पॉइंटर इज एट सेम पोजिशन, आई डिड नॉट शिफ्ट द पॉइंटर। ओके, सो अब मैं इस पे देख रहा हूँ कि 6 पे ये फटेगा नहीं है, इसको भी टाइम बिल्कुल 6 सेकेंड है, तो फिर ये फट जाएगा। ऐसे मैं काउंट करके ये टोटल नंबर ऑफ मेरे पास हो सकते हैं। ओके ओके, अब जैसे ये आया 0, तो ये 0 हो जाएगा। और ये कितना चलेगा, ये भी चलेगा, जो मैंने जो यहाँ पे निकाला था वो, ये डिफरेंस ऑफ सेल -1, ये उतना ही तो होगा। इतनी तो मैं फायर क्रैकर्स गिर सकता हूँ। ये टोटल कितना होगा, हाउ मैनी डिफरेंस ऑफ द सेल्स ऑफ गार्ड माइनस पर्सन +1, -1 सॉरी, that will be the number of cell present between these two positions. Okay, now let me code. I think most of the people will understand this problem, so if you then go and your do the code by yourself. Okay, and I'm doing the code for the same problem. So the what will be the time complexity, so this time complexity will be O of n. Okay, okay, now we are just given test cases here, NMAP and N M A and P. I'm just taking N M A P. Okay, now अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए I'm gonna take a vector of M. So vector of int that will be of S and of size M. So I'm just, so the time of firecrackers time will gonna take to explode. So this is all the SI values. Now what I need, तो पहले तो मुझे फाइंड करना है कि ये कितने में मैक्सिमम फायर क्रैकर ड्रॉप कर सकता हूँ। मैक्स फायर क्रैकर्स, ये फायर क्रैकर, अब वो मैं सर्च करूँगा कि अगर एक की पोजीशन बी से ज़्यादा है, इन द सेंस कि मतलब ये सिनेरियो है, गार्ड यहाँ पे है और जो पर्सन है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो वो तो फायर क्रैकर्स तो सेम ही रहेंगे एक्चुअली। कितने में ड्रॉप कर सकूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी, वो एब्सोल्यूट ऑफ A - B - 1।
अब मेरे पास है मैं रन टाइम, मतलब कि मैं कितने उस मतलब मैंने सारे फाइव का ड्रॉप कर दिए, फिर उसके बाद कितना भागूंगा मैं। तो फिर अब इसमें डिपेंड करेगा एक कॉमा बी। तो फाइव टाइम देखूँ मैं, तो टाइम कितना था, टाइम था ये कितना था A-1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द गार्ड, A-1 या A n-1, मतलब इन दोनों में से। ओके, तो फिर अगर ए ज़्यादा है तो एन माइन जो टाइम होगा, रन टाइम, सॉरी रन टाइम होगा वो होगा n-A+1। एल्स अगर ये सिचुएशन रन टाइम कितना होगा, वो होगा A-1+1 दैट इज इक्वल टू ए, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट विल बी A-1+1 मीन्स दिस केस। ओके, अगर वो इस साइड प्रेजेंट होगा, मतलब ये सिनेरियो होगा कि A is smaller than B and A is greater than B, mean the position of the person and position of the guard, but this is okay now। अब बस मुझे एक फोर लूप लगाना है, तो फिर मैं अभी इसको दे देता हूँ, रन टाइम इतना है मेरे पास, 4 int i 0 0, आई शुड बी लेस देन, मैक्सिमम मैं कितने ड्रॉप कर सकता हूँ, m ड्रॉप कर सकता हूँ, या m ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम m में ही है। ओके, तो टोटल काउंट में कितने मैंने फाइव करके ड्रॉप कर दिया वो मेरे काउंट देगा। पहले तो मैं सर्च करूँगा इफ़, जो पहले तो मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा ये। ओके, आई एम गोना सॉर्ट दिस वन, sorting s dot begin and s dot इन पॉइंटर। अगर s ऑफ पॉइंटर, ठीक है, या पॉइंटर या i भी सही है, ठीक है, s ऑफ i अगर वो इससे ज़्यादा है रन टाइम से, मतलब मैं इसके बाद इतना रन टाइम बचेगा मेरे पास सिर्फ, तो अगर इससे ज़्यादा है ये, सॉरी इससे कम है, तो मैं कहूँगा काउंट प्लस प्लस और एस आई भी प्लस हो जाएगा। अगर इससे कम है, इन द सेंस कि मतलब कि ये केस है कि ये जो टाइम है किसी भी में, जो ये टाइम है और जो रन टाइम है, मतलब रन टाइम इन द सेंस कि अगर मैं ये ड्रॉप इस पॉइंट पे कर दूँ तो इसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचेगा। अगर वो उससे ज़्यादा है तो मैं कहूँगा मैं इसको ड्रॉप करूँगा ही नहीं, ठीक है, मैं इसको ड्रॉप करने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि ये फटेगा ही नहीं। तो फिर मैं इस आई माइनस माइनस कर दूंगा, आई माइनस माइनस इन द सेंस कि मतलब वो दोबारा भी इसी पॉइंटर पे आ जाएगा मेरे पास, मतलब कि ये जो वैल्यू है यही आ जाएगी। आई माइनस माइनस मतलब कि सेंस कि मतलब मैं ऐसे चलता हूँ, ये आई है, फिर ये i+1 होगी, अब मुझे पता है अब ये ड्रॉप हो ही नहीं रहा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो आई प्लस प्लस हो गई, मतलब पॉइंट तो यहाँ जाएगा ही। अगर मैं यहीं पे ही आई माइनस माइनस कर दूँ तो वो दोबारा इसी पॉइंट पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आई माइनस माइनस मतलब वो सेम, वो इंक्रीज नहीं होगा इन द सेंस, ठीक है। ओके, और पहले तो मैं मैक्सिमम फायर क्रैकर्स यहाँ पे मैं एक माइनस कर दूंगा, क्योंकि इफ और वेट अ मिनट, ये हो गया। अब इसके बाद एक तो मेरा रन टाइम इंक्रीज हो जाएगा 1 सेकंड से, ठीक है, क्योंकि मैं 1 सेकंड ऊपर पहुंच रहा हूँ, मतलब मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, तो 1 सेकंड ऊपर फिर 1 सेकंड ऊपर, तो फिर मेरा तो रन टाइम इंक्रीज होएगा। और जो डिफरेंस है, मतलब वो गार्ड भी इस तरफ आता रहेगा, गार्ड इस तरफ आता रहेगा, तो गार्ड इस तरफ आता रहेगा, जो मेरे मैक्स फायर क्रैकर्स हैं वो भी डिक्रीज होते रहेंगे। और जब मेरा मैक्स फायर क्रैकर्स लेस देन जीरो हो जाएगा या इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हाँ लेस देन जीरो, हाँ, इफ़ मैक्स फायर क्रैकर्स मैं इतनी ड्रॉ कर सकता हूँ, वो भी लेस देन जीरो हो गया, वो मैं ब्रेक कर दूंगा। ओके, अब मुझे ये रन करके देखना, बस यही तो एक स्मॉल सा। ओके, आई डिडंट प्रिंट एनीथिंग, टू इट इज रॉन्ग। ओके, वेट अ मिनट,
या तो फिर मैं शॉर्ट कर दिया, मैंने शॉर्ट कर दिया। अब मैं चलते जा रहा हूँ कि अगर रन टाइम इससे बड़ा हुआ तो काउंट प्लस प्लस होगा, और रन टाइम इंक्रीज हो गई और मैक्स फायर कर डिक्रीज होंगे। ओके। ओके, तो काम स्टे कर रहा हूँ मैं। एन ओ शिट, ये मैं ए ले रहा हूँ, एन तो ले ही नहीं रहा। स्टिल एन एम ए बी हो गया। एस ऑफ एम, मैं एस एलिमेंट्स ले लिए, फिर इसको शॉर्ट कर दिया। मैक्सिमम फायर कर इतने ड्रॉप हो सकते हैं, फिर रन टाइम इतना हो सकता है। ओके, 100% ट्रू। मैं फिर रन टाइम से चेक करता आ रहा हूँ कि एस ऑफ आई वो हो गया, तो ये रन टाइम प्लस प्लस और फायर का माइनस माइनस। ओके, तो फिर कौन से एग्जांपल में गलत टाइम दे रहा है, ये दे रहा है मुझे। तो फिर मैं पहले तो मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो इस एग्जांपल से समझ लें कि रन टाइम कितना आ रहा है, मैक्स क्रैकर कितने फॉल हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि रन टाइम इनिशियली कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, या इसी में ही चलते हैं कि इसमें रन टाइम इतना आ रहा है, मैक्स फायर क्रैकर्स मैं इतने गिर सकता हूँ अभी, और मैं किस पोजीशन पे हूँ। तो फिर आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैं फर्स्ट होगा वो होगा। ओ, इट्स शॉर्ट नहीं हो रहा क्या, एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड, शॉर्ट तो होना चाहिए था। शॉर्ट होने के बाद तो इसका टाइम होता है 1 सेकेंड और इसका 5 सेकेंड, और रन टाइम कितना है 2 सेकेंड। यहाँ पे फिर क्यों नहीं जा रही है। ओह इंटरेस्टिंग। तो फिर मतलब कि आई इक्वल टू जीरो जीरो दो बार चल रहे हैं, इन द सेंस कि वो नहीं जा पा रहा। आई इक्वल टू जीरो। ओके, मैं सोफ आई और प्रिंट करके देखता हूँ कि मतलब कौन से टाइम वाला है ये। रन टाइम इफ ग्रेटर देन इक्वल टू रन टाइम इज 3, तो फिर ये जा क्यों नहीं रहा 1, इसको तो यहाँ जाना चाहिए। इज जीरो, अच्छा वो बार बार माइनस कर रहा है। ओके 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 ओके, आई गॉट। तो फिर यहाँ पे, तो इसको देख मैं समझूँ तो इसमें ही समझते हैं इसको। हाँ 7 है, और ये भी 7 का है इस। ओके, 2 1 और 5 है, ये एग्जांपल लेके। तो फिर एस है वो 2 है, 1 और 5, और जो पोजीशन है उनकी है वो 3 और 6। 3 पे पर्सन है और 6 पे जो गार्ड। ओके, तो पहले तो ये मैक्सिमम 2 ड्रॉप कर सकता है, फिर इसके पास टाइम कितना है, यहाँ तक है। ठीक है, तो पहले तो ये पहला ड्रॉप कर देगा 1 वाला, फिर जो ये गार्ड यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर ये ड्रॉप कर देगा 5 वाला। तो ये 5 वाला कब फटेगा, 7th सेकंड पे, मतलब ये टी, मैं सेकंड्स पे चलो, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। 1 पे इसने जो टाइम वाला है ये 5 वाला ड्रॉप करेगा, तो ये 6 सेकंड पे फटेगा। और यहाँ पे ये 1 सेकंड वाला ड्रॉप करा, तो ये 3rd सेकंड पे फट जाएगा। तो 1 सेकंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पे है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ पे। तो टी इज इक्वल 3 पे ये फट जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। फिर 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 6 सेकंड पे जा ही नहीं रहा ना, तो फिर ये फट क्यों रहा है इसमें। हाँ। हम्म। हो we can see that। ओके, या हाँ सही यार, वो मैंने यहाँ पे वो, अगर फायर क्रैकर वो जीरो हो जाएंगे तो फिर वो फटे, वो ब्रेक करना पड़ेगा।
मैं इसको लेस देन 0 ले लेता हूँ। ओके, माय फॉल्ट। तो फिर अब देखो ये हो गया। ओके, नाउ ये भी टीएल ही देगा, क्यों? क्योंकि जो रन टाइम है ये प्लस प्लस होते होते और ये जो मैं कहूँ मैक्सिमम फायर करा कर सकूँ, वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द पोजीशंस, वो क्या है, एन पे डिपेंड कर रहा है। और एन मैक्सिमम कितना है, 10⁹9। तो वो फायर वो दे सकता है। तो फिर मैं एक ऑब्जर्वेशन करूँ यहाँ पे कि मतलब मैं जैसे कि ये है मेरे पास कि अभी मेरा रन टाइम है वो है 5 सेकेंड, किसी भी केस की 5 सेकेंड। और डिफरेंस कुछ है, लाइक ये सॉरी डिफरेंस नहीं है, ये क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स मैक्स इतनी फोड़ सकता हूँ, ये कुछ भी है। और जो अगला टाइम है, अगला टाइम मतलब SO5, इसको कितना टाइम चाहिए, इसको चाहिए 10⁵ तो फिर मैं कहूँ कि मैं तो +1 +1 करता रहूँगा हर बार, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि मुझे पता है कि मुझे इतना टाइम चाहिए, तो मैं सीधा इस पे बैठा देता हूँ कि मेरा रन टाइम होना चाहिए, मतलब कि मुझे टाइम चाहिए 10⁵ माइनस रन टाइम। फिर मैं वो देख लूँगा वो पॉसिबल है या नहीं, तो मैं यही करता हूँ सीधा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टाइम मैं देखता हूँ वो है मेरे पास SO5, और अभी मैं किस टाइम पे हूँ, रन टाइम पे, मुझे इतना टाइम चाहिए। तो फिर मैं अब क्या करूँगा, ओके ये हो गया ना। तो रन टाइम को तो मैं इंक्रीज़ कर दूंगा इससे, तो फिर वो मेरा हो जाएगा। और जो मैक्स फायर क्रैकर्स है उसको मैं डिक्रीज़ कर दूंगा इससे, रन टाइम से, रिक्वायर्ड टाइम से। तो अगर वो नहीं हो दे पाएगा तो फिर वो क्लोज हो जाएगा। ओके, यस, ठीक है ना, मुझे क्योंकि वो बार बार चलने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो यहाँ पे आएगा, मैं इसको बताऊँ तो फिर अगर वो यहाँ पे आया, मतलब वो प्लस हो गया, तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली तो इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ पे आ गया तो इंक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मैं एक बुलियन ले लेता हूँ। इसमें समझ रहे हो यहाँ पे क्यों इंक्रीज़ करने पड़ेगा, यहाँ पे मतलब कि उसने वो पटाखा फूट गया, ठीक है, तो फिर वो टाइम तो इंक्रीज़ होगा ही होगा ना। तो ये तो मतलब ऑलवेज होंगे। तो फिर मैं इसको +1 कर देता हूँ, रिक्वायर्ड को मैं एक -1 कर देता हूँ यहाँ पे। रिक्वायर्ड को मैंने यहाँ पे एक -1 कर दिया, तो मतलब टाइम -1, मतलब टाइम रिक्वायर्ड अगर पहले मुझे चाहिए 4 सेकेंड, तो ये रिक्वायर्ड कितना बचेगा, 3 सेकेंड। तो फिर अरे एक प्लस यहाँ पे होगा तो ये 4 सेकेंड प्लस हो जाएगा। ओके, अब सही है। ओके, ओके, तो फिर ये मेरा टीएलई से बचा लेगा मुझे, ये हर बार मुझे इतना टाइम चाहिए। फिर मुझे सबमिट करके देखने देखो। हम्म काफ़ी स्लो चल रही है साइट में भी। हम्म ओके, सबमिट हो जाएगा, 44 तक हो गया तो। या तो ये देखो ये ऑफ एन में सॉल्यूशन था। अगर बाइनरी सर्च सेव कर सकते हो, बाइनरी सर्च भी इजी था। लेकिन ये था एक वो ग्रीडी टाइप सॉल्यूशन बन गया ये, कुछ भी वैसे मतलब कोई इतना हैवी सॉल्यूशन नहीं था, एक ग्रीडी टाइप सिंपल सॉल्यूशन था कि मतलब लास्ट में मैं मिनिमम वाले को घेरते जाऊंगा बस, ये एक अप्रोच थी। ओके, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज हिल्स एंड वैली। So what we are given, you are just given a sequence of an integers a1 an. Let's call an index j a hill if the a of j is greater than the j+1 index value of the j, and still greater than j-1 index value, and if it is a valley then it will be less than. Let us define the intimidation value of a sequence as the sum of number of hills and the number of valleys in the sequence. So you can change exactly one integer in the sequence to any number of that you want, or let the sequence remain unchanged. What is the minimum intimidation value that you can achieve? Okay,
तो फिर अगर ये अब हिल, तो कभी कभी क्या होता है ऐसी प्रॉब्लम्स में, वो काफ़ी अच्छा होता है कि मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लूँ। ठीक है, तो फिर मैं ग्राफिकली ऐसे हो सकती है, मतलब कि कुछ वैल्यू ऐसे, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मतलब किसी पॉइंट पे इतनी वैल्यू है, ये है वाई वैल्यूज, ये है एक्स। तो ग्राफिकली काफ़ी इजी हो जाता है, ये एक्स है ये वाई है, तो मतलब ये वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, काइंड ऑफ मतलब इस पॉइंट की वैल्यू 2 है, इसकी फिर 1 है, इसकी 1 है, फिर इसकी -1 है, इसकी 2 +1, फिर इसकी 5। ठीक है, तो फिर मुझे एक विजुअल मिल जाएगा, मतलब कि हाँ ये ऐसा काइंड ऑफ हो रहा है कुछ, मतलब कुछ भी दे दिया मैंने तो ऐसे। ठीक है, तो पहले तो मुझे चेंज करना, मतलब कि नंबर ऑफ वैलीज एंड नंबर ऑफ, ये हिल हो गई, ये वैली हो गई एक, ये हिल, ये वैली और ये हिल। तो फिर अब मुझे टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये मिनिमम करना है और मैं किसी एक पॉइंट की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं कहूँ अगर मैं किसी पॉइंट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ओके, मैं किसी अगर पॉइंट की वैल्यू चेंज करूँ, तो फिर मैं कहूँगी अगर ओके ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसके बाद एक और, कि ये ऐसा कुछ है, ये हिल है और ये वैली है और ये दोबारा हिल है। तो फिर मैं कहूँ कि मुझे एक पॉइंट की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं अभी किसी भी पॉइंट की वैल्यू, मतलब इसकी पॉइंट की वैल्यू मैं इससे उठा के यहाँ कुछ भी कर दूँ, यहाँ कर दूँ या यहाँ कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि किस किस, ये जो पॉइंट है वो किस किस में वो डिफर करेगा, मैं किसी आई की चेंज कर रहा हूँ, तो फिर ये कितनी मैक्सिमम चेंज करेगा। तो मैं कहूँगा अगर मैं ai-1 के लिए हिल या वैली कैलकुलेट कर रहा हूँ तो भी डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि मुझे i-1 के लिए ए आई वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो i-1 के लिए चेक करना पड़ेगा, आई के लिए चेक करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज कर दी, और i+1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसकी -1 वाली वैल्यू चेक कर दी। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं किसी भी पॉइंट को अगर चेंज करता हूँ तो मैक्सिमम मुझे 3 मोर पॉइंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा। ओके, तो मैं अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ मैं, कि मतलब कि हर एक, मतलब ब्रूट फोर्स अप्लाई करो कि हर एक पॉइंट को चेंज करके फिर उसकी वैल्यू देख रहा हूँ मैं, फिर 3 पॉइंट्स पे, मतलब एक पीछे वाला आगे वाला, तीनों पॉइंट्स की वैल्यू मैं देख रहा हूँ, तो फिर मुझे वो देखना पड़ेगा कि ये है या नहीं, मतलब कि, तो मुझे कितने मैक्सिमम 3 पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे, तो 3 ऑफ n टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, तो इट इज़ काइंड ऑफ O ऑफ n, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O होनी चाहिए, तो मैं ब्रूट फोर्स लगा सकता हूँ हर एक पॉइंट के लिए इंडिविजुअली चेक करके देख सकता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, चलो ठीक है मैंने कर लिया कि अब मुझे हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेक करके मैं इजीली कर सकता हूँ, तो अब मुझे करना कि ये पता करना है कि मुझे वैल्यू क्या चेंज करनी है। तो वैल्यू तो कुछ भी है, मतलब इस पॉइंट की मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुझे वैल्यू इस तरह से चेंज करनी है कि जो हिल और वैली है वो मिनिमम हो जाए। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि हिल और वैली टाइप ऑफ ऐसा होता है कि ऐसा है, मान लो ये है कुछ, या काइंड ऑफ ये सेम वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ ये है, ये फिर लोअर है और ये कुछ अपर है। ठीक है, अब मुझे चेंज करना है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे या पीक नहीं चाहिए या वैली नहीं चाहिए, तो ये कब मुझे ये खत्म करना है, इन द सेंस मुझे अगर इंटिमिडेशन वैल्यू या काइंड ऑफ नंबर ऑफ हिल एंड वैली लो चाहिए, तो फिर मुझे ये हीप काइंड ऑफ ये पॉइंट्स टाइप मुझे खत्म करने होंगे, हील और लो। ठीक है, तो मैं इनको कब खत्म कर सकता हूँ, ये खत्म जब हो सकते हैं जब काइंड ऑफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब ये स्ट्रेट लाइन बन जाए तो स्ट्रेट लाइन पे तो ये पीक होते नहीं, मतलब ये डाउन पीक या अप पीक, तो फिर मैं कहूँगा कि इसको मैं अगर इसके वैल्यू इक्वल रख दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा ग्राफ, तो फिर ये हिल और ये वैल्यू दोनों खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो बस मुझे यही करना है कि या तो मैं इसकी इक्वल रख दूँ या मैं इसकी वैल्यू को, अब मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, या तो मैं इस वैल्यू को इसके इक्वल रख दूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, या मैं इसके इक्वल रख दूँ तो कुछ ऐसे बन जाएगा, तो इनमें जो मिनिमम आएगा इन दोनों सॉल्यूशन में से मुझे वो लेना है बस। तो काइंड ऑफ ये इजी काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्सिटी का फील है, तो इजीली कर सकते हैं इसको तो।
I think most of people will gonna do that, so you can do it by yourself only. So I have n value, int of n, then I have vector of a of n. It's taking the all the values of a. अब मैं पहले तुम्हें टोटल कितने हैं, इन टोटल इज इक्वल टू 0, तो फिर 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इंट जेड इज इक्वल टू इज हिल और वैल्यू, और तो मुझे ये चेक करना है ये हिल है या वैली है आई के लिए, और मैं इसमें ए अरे, ठीक है। तो पहले तो अब मेरे पास ये टोटल में ऐड हो जाएगा, मैं टोटल में बता दूंगा मेरे पास कितने हिल्स हैं या कितने वैलीज हैं। तो मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, इंट इज हिल और वैली, इंट किसी इंडेक्स के लिए, और वेक्टर ऑफ टाइप ऑफ इंट ए, इंट एन इज इक्वल टू ए डॉट साइज, और मैं 100% श्योर होना पड़ेगा कि जो अगर ए है वो इज इक्वल, मतलब इंडेक्स है वो इज इक्वल टू 0 हुआ, और इंडेक्स इज इक्वल टू i-1, तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कि उस केस में मुझे कोई हिल और वैल्यू मिलेगी नहीं। अब मुझे फाइंड कब करना है, हिल या वैल्यू कब होगी, इफ़ जो वैल्यू है इंडेक्स की वो मिनिमम हो इन दोनों से, मतलब कि किन किन से, i-1 से या i+1 से, तो फिर ये हो जाएगी वैल्यू। अगर और या हिल हो तो फिर ये इससे दोनों से मैक्सिमम वाली से दोनों से बड़ी हो, तो फिर ये हो जाएगी वैल्यू, ये हिल हो जाएगी। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। तो फिर ये तो बता देगा मेरे पास हिल है या वैली है, तो इस फंक्शन से इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसमें मैं वही कर रहा हूँ जो उसमें दे रखा है, कि मतलब वो दोनों से जो ai- और ai+ से दोनों से अगर मिनिमम हुई तो वो वैल्यू हो जाएगी, अगर दोनों से मैक्सिमम हुई तो वो हिल हो जाएगी, बस यही फाइंड करना था। तो टोटल हो गई मेरे पास। अब मैं यहाँ चलता हूँ, अब मैं चेंज करने पे आता हूँ मैं। तो पहले तो इन रिजल्ट मुझे मिनिमम चाहिए, इन रिजल्ट अभी तो टोटल है, ठीक है। तो मैं अब चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू की मैंने, और ओके ओके, पहले तो मैं कर लेता हूँ, ये फाइंड कर लेता हूँ। हाँ, इंट नाउ, पहले तो मैं देखता हूँ पहले कितनी वैल्यू थी इनकी, इज इक्वल टू इज हिल और वैल्यू i-1, और प्लस इज हिल और वैल्यू i+i, प्लस इज हिल और वैल्यू, मतलब ये 3 पॉइंट, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ए ऑफ आई की, तो ये 3 वैल्यू चेंज होंगी। तो मैं पहले कर रहा हूँ कि पहले कितनी वैल्यू थी, वो इतनी वैल्यू थी इन पे, हिल और वैलीज की, ठीक है। ओके, मुझे पता चल गया, मुझे ए वेक्टर भी साथ भेजना पड़ेगा। नाउ इट इज़ गुड। अब पहले तो ये थी प्रीवियस वैल्यूज़, ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यू, इंट नाउ करंट वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर मैंने चेंज कर दिया कि मतलब ए ऑफ आई की वैल्यू a-i-1 की इक्वल रख दी एक केस में, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ये करंट 1, और या ए ऑफ आई की वैल्यू मैंने रख दी a-i+1 के बराबर, इंट करंट 2। ओके, तो मैं बस ये दोनों वैल्यू चेक कर रहा हूँ, मतलब एक बार इसकी वैल्यू इतनी रख दी, एक बार इसकी वैल्यू इतनी रख दी। ओके, ये हो गया। अब मैं ए ऑफ आई को अपनी ओरिजिनल वैल्यू दे देता हूँ, ए ऑफ आई इक्वल टू ओरिजिनल। तो ओरिजिनल के लिए मुझे पहले एक वेक्टर को बनाना पड़ेगा, इंट ओरिजिनल, तो ए ऑफ आई के बराबर है, ओके, ठीक है। अब मेरे पास ये हो गया, तो फिर
तो मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो मैं कह रहा हूँ अब जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पहले तो टोटल थी, टोटल में से तो मुझे अगर मेन तीनों घटा दो तो इतनी माइनस हो जाएगी, और मुझे ऐड कितने करनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट वन करंट टू। मतलब अगर मैं उसके इक्वल रख दूँ तो इतनी वैल्यू आएगी, उसके इक्वल रख दूँ ए ऑफ आई प्लस वन के इक्वल रख दूँ इतनी वैल्यू आएगी, और मुझे वो बस फाइंड करनी है। तो मैं कह रहा हूँ ये आई माइनस वन से वन तक ही चलते हैं, क्योंकि लास्ट वाले को चेंज करने कोई फ़र्क होगा नहीं। ओके, सो आई थिंक इट विल बी गुड। या लास्ट वाले को चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो ये अगर कभी ऐसे डाउट हो तो फिगर बना के देख लेना, ठीक है। डायग्राम इज़ द बेस्ट थिंग। तो मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा है कुछ भी, अगर इसको चेंज ना करूँ तो फिर कुछ फ़र्क मिलेगा ही नहीं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको चेंज नहीं करा तो मैं इसको ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको चेंज तो करना ही है। तो वो केस तो आ ही जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये है कुछ ऐसा। तो इसमें अगर मैंने इसको ही चेंज किया, इसकी वैल्यू बराबर, इसको चेंज नहीं करा, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसको इसके इक्वल चेंज करना पड़ेगा, तो वैल्यू कुछ ऐसी होगी, तो फिर कुछ डिफरेंस होगा इसमें। मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वली हो रही हैं। ओके, अगर वो इसकी एक बड़ी हुई से ज़्यादा बड़ी हुई, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ, और या कुछ ऐसा हुआ कुछ इससे भी ज़्यादा बड़ी हुई, तो मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जितना नहीं लग रहा। ओके, ठीक है, फिर हो गया। हम्म और रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमा ऑफ रिजल्ट कॉमा टेम्प और सी आउट। आई थिंक सो हो गया सब। अब मुझे एक बार ये फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। हाँ, इसमें अगर ये भी जीरो हो गए, और अगर एंड इज इक्वल ये आ गया, तो आई माइनस वन या आई प्लस वन पर काम नहीं करेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, सही है मेरे साथ, आई थिंक सो इट इज़ गुड। लेट मी चेक इन दैट। हाँ, सही आ रहा है। तो ये काइंड ऑफ सिंपल सी प्रॉब्लम थी, तो ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे थे। Okay, so this is the last problem of the day. Close tuples. So this is the hard version. Oh, this is the hard version. So you can see that if this is the E2 problem, or the last problem, I say last of last problem of due 3. If you do these problems, then you are just into 100 or 200 rank of due 3. 200, or I can think so, of 300 of. Okay. So the only difference between the easy and the hard version is the constraint of on M and K. So in this version of the problem, you need to output the array by modulo 10 to the power 9 plus 7. You are given a sequence A of length n consist of integer from 1 to n. The sequence may contain duplicates, that is, some element can be equal. Okay. Find the number of tuples of m elements such that the number maximum number of tuple difference from minimum by no more than k. Formally, you need to find the number of tuples m indices. I need to choose m indices such that the min and maximum will be less than equal to k. Okay, and the remainder. Okay. So actually, what we are given is that we are given a kind of array. Mm-hmm. Okay, we are given an array of values a1 to an, and i1, i2, i3, i4. I'll choose some m elements, and the minimum and maximum of all these m elements should be less than equal to k. Okay, so
व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इसको पहले तो शॉर्ट कर लूँगा अरे को, आई एम गोना शॉर्ट द अरे, so the value will be, values will become let's say the array is 2 3 1 1 4 5 8 12 13, something like that. So if I'm going to sort this value, then it will be look like something 1 1 2 3 4, then 5 8 12 and 13. Okay, it will look like something like that. So what I need to do is, let's say I need to find the maximum and minimum, so the difference will become less than k. So now you are given the k value should be equal to max value of a1 to am elements and the min value of a1 to am element. So you can see that when I'm sorting this element, so you can say that the max value will be a of m, the last element I'm just taking of the sequence, and the min value will be a of 1. So just I need to find the difference that is equal to less than k. So if I'm just checking for all of the ai's, ओके, मैं पहले ए ऑफ वन के लिए चेक करूँ, फिर ए लाइक इसके लिए, फिर इसके लिए, तो मुझे ये ए ऑफ एम फाइंड करना है। तो ए ऑफ एम शुड बी इज इक्वल टू के प्लस, सॉरी ए ऑफ एम फाइंड करना है, तो ए ऑफ एम इज इक्वल टू लेस देन ए ऑफ आई प्लस के। ओके, तो फिर मैं यहाँ से बाइनरी सर्च लगा लूँ, तो बाइनरी सर्च इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ कि मतलब कि जो वैल्यू इससे वन प्लस के से छोटी या इक्वल हो, तो फिर मैं जैसे कि के इज इक्वल टू 4 है तो इज 5 होगी, तो 5 या 5 से छोटी, तो फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरा इंडेक्स आ जाएगा। ओके ओके, तो ये मेरी वैल्यू आ गई। तो पहले तो अब मुझे क्या करना है, ये तो फिक्स वैल्यू है, अब इनमें से मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, जैसे कि वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है और एम इज इक्वल टू 4 है, तो वन वैल्यू तो फिक्स हो गई मेरी। तो फिर मैं अगर वो एम बनूंगा, एम टपल्स बनाऊंगा, तो वन वैल्यू तो फिक्स हो गई सब में, कितनी भी बनूँ। अब मुझे ये लास्ट की तीन वैल्यू चाहिए, तो तीन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तीन वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फिर अब मुझे, अब वैल्यू कितनी है मेरे पास, टोटल पाँच है, पाँच में से मुझे तीन वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो क्या जाएगा 5 C3 बस। तो फिर देख काइंड ऑफ ये कुछ नहीं करना इस प्रॉब्लम में, काइंड ऑफ पहले तो एक बाइनरी सर्च लगेगा और फिर एक ये फॉर्मूला लगेगा एनसीके का। तो मे बी यू इफ़ यू डोंट नो, आई एम गोना टेल यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस। तो इसको कैसे करते हैं हम, इसको करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू एन सी आर की वैल्यू कितनी आती है, लाइक फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ आर एंड टू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। अब इसको ये डिवाइड में, पहले तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू तो हम फैक्टोरियल से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, फिर इसको डिवाइड में, तो इसको अब मुझे रिमाइंडर चाहिए मोड का, मोड इज इक्वल टू 1 e⁻9+7। तो इसको मैं क्या क्या कैसे लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल लाइन। अगर इसको वो करते हैं हम इन्वर्जन, तो इस इन्वर्जन कैसे होता है, ये इंटू इसका इन्वर्जन एल ऑफ आर इंटू एल ऑफ एन माइनस आर, इसकी पावर जो मोड -2 दे देते हैं। तो ये काइंड ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन ऐसे होता है, अगर तुम रीड करना चाहो तो काफ़ी साइट्स हैं उस पर से रीड कर सकते हो कि कैसे इन्वर्जन फाइंड कर सकते हैं, कि अगर ओड वैल्यू हुई तो वो मोड -2 हो जाता है। तो फिर बस ये मेरी वैल्यू हो जाएगी, तो मुझे इंस्टेड ऑफ दिस, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कंपेरेटिव इक्वल टू दिस वन फैक्टोरियल ऑफ एन एंड फैक्टोरियल ऑफ आर इंटू एन। तो इसको मैं कुछ भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर नाम दे दूँ, इसको मैं डिनोमिनेटर नाम दे दूँ। तो इसकी मुझे पावर फाइंड करनी है n-2, पावर ऑफ मोड -2। और इसको ये पावर फाइंड करने का इजीली बहुत सारे तरीके होते हैं log ऑफ एन टाइम में, तो कर सकते हैं। तो बस यही था, एक मुझे एक कम्बिनेट्रिक्स या परमुटेशन की एक इक्वेशन लगानी है और एक बाइनरी सर्च लगाना है काइंड ऑफ। तो फिर हाँ, एक एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि इन्होंने दे रखा है कि ये आई शुड बी इंक्रीजिंग, सो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि हम इसको शॉर्ट नहीं कर पाते, शॉर्ट नहीं करेंगे तो फिर आई इधर उधर हो जाएगा। फिर लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर अभी ये है, तो फिर इसकी आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, तो ये मतलब बहुत लोगों के शायद में भी दिमाग में आ रहा होगी दिस विल नॉट गोना बी गिव अस द आंसर, और इफ इट इज गिविंग द आंसर देन इट विल बी काइंड ऑफ अ हैक और समथिंग। तो फिर अगर देखो इसकी ये है इंडेक्स वैल्यू, so after sorting the value of this will be, index will be 3 4, and after that it will be what is
what is the index of 2, 1 and 2. So let's say I'm just taking the m is equal to 4, I'm just taking these four values, so you can see that the index is not increased. So I'm saying that we are not constrained to value. So इन द हैंड मैं इंडेक्स क्या ले रहा हूँ 3 4 1 2, तो मैं इसको मैं अभी ये भी तो कह सकता हूँ मैं इस इंडेक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4, तो फिर वो अरे क्या बन जाएगा मेरे पास, हाँ 1 पे वैल्यू कितनी है 1, 2 सॉरी सॉरी 1 पे इंडेक्स 1 पे वैल्यू है 2, ये 3, ये 1 1। सो क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे सिर्फ एक अरे के मैक्स और मिनिमा से मतलब है, मुझे उसकी इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं इंडेक्स को बाद में चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि अब मेरा इंडेक्स, अब इस वैल्यू के लिए इंडेक्स तो ऐसा आएगा, लेकिन मैं इसका कि मुझे तो शॉर्टिंग में चाहिए, तो मैं इसको शॉर्ट करके देखूंगा तो वैल्यू तो मेरे पास हो ही रहेंगी ना। मैं इसको अरे को शॉर्ट कर दूँ तो वैल्यू मेरे पास तो हो ही रहेंगी, तो वैल्यू थोड़ी ना चेंज होने वाली है। तो और मुझे वैल्यूज़ का सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमा से मुझे रिजल्ट चाहिए, उसकी पोजीशन से मुझे कोई रिलेटेड नहीं है रिजल्ट में, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर पा रहा हूँ। ओके, so this may be, this might be a confusion in many minds. So yeah, I think so. So we are just good for going for the result. If you already know about if you think then you can solve this problem, so you just go on. Okay, if not then stay with me. Okay, so पहले तो n m and k, n and m k. Okay, vector value will be 10 to the power 5, a of 10 to the power 5, so int a of n. First of all I'm just taking all the input of a, फिर शॉर्ट कर देते हैं इसको। Okay. अब मैं हर इंडेक्स पे जाके बस वो वैल्यू कैलकुलेट करना है, आई लेस देन आई प्लस प्लस। अब मैं लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट कितना होगा, और मैं एक कांस्टेंट भी दे देता हूँ यहाँ पे, मुझे चाहिए होगा हर जगह ही चाहिए होगा कांस्टेंट मोड, मोड विल बी 189 + 7। ओके, तो फिर मुझे नेक्स्ट इंडेक्स जहाँ जिस पे वैल्यू मेरी सही हो, हाँ, तो फिर अपर बाउंड, मैं अपर बाउंड ले रहा हूँ। अपर बाउंड तो ये अपर बाउंड टू लोअर बाउंड, मे बी यू नो दैट दिस इज आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। सो व्हाट वी गोना डू, दिस विल गोना डू, अगर मैं किसी वैल्यू से अपर बाउंड कर सकता हूँ उससे जस्ट आगे वाला मुझे वो वर्ड देगा, तो फिर मैं इंडेक्स को 1 माइनस कर दूंगा। ओके, फिर ए डॉट बिगिन, ए डॉट एंड अपर बाउंड ऑफ विल बी ए ऑफ आई प्लस के माइनस ए डॉट बिगिन। ये मुझे पहले, ये तो क्या देता है मुझे, ये मुझे पॉइंटर देता है ए ऑफ अरे के बाद, पॉइंटर देता है, तो फिर मैं इसको इस पॉइंटर से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो वो मुझे इंडेक्स दे देता है, क्योंकि जो मेमोरी में जो साइज होता है वो कंटिन्यूसली अरे वो होता है इंडेक्स किसके, उस एड्रेस के, मतलब +1 +2, अगर मैं उसका पहले का इंडेक्स वो एड्रेस वो कर दूँ माइनस कर दूँ तो वो मेरे पास इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यू कैन रीड एनी फ्रॉम एनी यार देयर tons of site we have these functions, STL functions. Okay, if you want to read you can read from any website. Okay, then अब मुझे पहले तो इंडेक्स -1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, तो मुझे ये उसके बराबर ही उससे छोटी वैल्यू चाहिए ए ऑफ आई प्लस 1 से, मैं क्योंकि अपर बाउंड ले रहा हूँ। चलो हो गया, फिर ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एन सी आर फंक्शन, मतलब कि मेरे पास टोटल टोटल कितने हैं, इन टोटल, टोटल एलिमेंट, और मैं कहूँ हाँ टोटल वैल्यू है मेरे पास हाँ नेक्स्ट इंडेक्स से लेके आई तक, तो फिर इतनी टोटल वैल्यूज़ हैं, तो फिर टोटल एन सी आर विल बी टोटल, टोटल -1 एक्चुअली, क्योंकि एक तो फिक्स है ये फाई तो, और मुझे चाहिए m-1, इसको मैं कह दूँ लॉन्ग लॉन्ग टेम्प, और जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा रिजल्ट विल बी रिजल्ट प्लस टेम्प% मोड, द मोड वैल्यू, and I'm just taking the result value, that's it. Okay, so ncr int
you can say n. Okay, I'm just saying int n and long r. तो फिर बस मैं यही कर रहा हूँ, यही इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला। इसको मैं न्यूमरेटर दे दूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो मुझे एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली। तो कॉन्स्ट मैक्सिमम इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम, एन की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू की पावर 5 प्लस 10। ओके, ऑलरेडी डिफाइन है कि मैक्स। ओके, कॉन्स्ट इन मैक्स। ओके, मुझे वॉइड फैक्टोरियल एक फैक्ट लेना पड़ेगा, लॉन्ग फैक्ट ऑफ साइज मैक्सिमम एंड वॉइड फैक्टोरियल and for int I is equal to 0 and I is equal to 1, I less than maximum and I plus plus. We already know that factorial value of 0 will be equal to 1. This is a simple algorithm, you might know that. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्ट ऑफ i इंटू आई माइन फैक्ट ऑफ i माइनस 1 इंटू आई एंड परसेंट मोड। so it may be long value. ओके, सो फिर पहले तो मुझे फैक्टोरियल कॉल करना पड़ेगा, फैक्टोरियल। तो मेरे पास ये फैक्ट अरे आ गया। तो लॉन्ग न्यूमरेटर कितना आएगा इसका, फैक्ट ऑफ एन, और डिनोमिनेटर कितना आएगा यहाँ पे मैं देखूँ तो डिनोमिनेटर आएगा फैक्टोरियल ऑफ आर, लॉन्ग डिनोमिनेटर इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ आर इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, यही है यहाँ पे आर इंटू एन माइनस आर परसेंट मोड। अब मुझे क्या चाहिए, जो ये डिनोमिनेटर बनेगा वो बनेगा एक्चुअली में पावर, मुझे पावर चाहिए, किसकी पावर चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर मोड माइनस 2 और मोड, और ये भी ज़रूरत नहीं इसकी कि पावर चाहिए मोड माइनस 2 और ये, और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर रिजल्ट विल बी लॉन्ग रिजल्ट विल बी न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर परसेंट मोड, return I'm just returning result. Okay, this will be fine. I need to find the power of long a and long power. Let's say it is, if b is equal to 0 then power is equal to 0, then return 1. Else if b is odd, then it will gonna return what will be a into power of a comma b percent mode. Else this is a standard algorithm, so you can find anywhere that you want. हम क्या कर रहे हैं, अगर वो E1 वैल्यू हुई तो फिर मैं कह रहा हूँ कि उसको डबल कर देंगे, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बस यही करना है। L2 percent mode return out. Okay, I think so that will be fine. All seems good. So first of all let's check it. It will give something segment fault. Let me see what it is. First of all t test cases, फिर nm, oh I'm taking m, alright, still giving, so a of n, I'm taking a of i's, then I'm just sorting a to a of n. Okay, so if r is greater than n, then return 0, still giving. Okay, there are, I miss so many test cases, edge cases, sorry. A of begin, a dot end, and a of I plus k, then I'm just made minus. I need to find of NCR. तो अगर m की वैल्यू NCR होते हैं तो फिर r की वैल्यू उसके छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वही कर रहा था मैं यहाँ पे, NCR विल बी रिजल्ट कम, तो यहाँ पे मैं वही कर रहा था, अगर r इसकी वैल्यू पड़ी हुई तो रिटर्न वो 0 कर रहे हैं। ओके, तो फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल का फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ 0 i माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ, ये बिल्कुल सही है। आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ फाइन। मोड लेवल माइनस, अब मुझे एन सी आर की वैल्यू फैक्टर ऑफ आर टू एन माइनस आर का मोड, फिर डेमो की वैल्यू या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की वैल्यू पावर मोड माइनस 2। ओके, जो रिजल्ट आएगा वो डिनोमिनेटर मोड, और जो पावर होगी ए बी इक्वल टू 0 तो 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू ओड तो ए इंटू बी माइनस 1, दैट्स इट, दैट्स द केस।
Now good, it is giving some results. Then power will be a into b by 2, and this will be something called, yeah, completely fine. Okay. Okay, so first generator will be this one, max value to I. Okay, it's okay, 26120, 26120, fine. Oh yeah, thank you.